Hello and welcome everyone. Welcome to Jatin Verma's IAS Academy. I am Jatin Verma. So guys, in this video we are going to talk about important judgments of the Supreme Court. This video is going to be relevant for UPSC Civil Services exam, state PCS exams and for public administration optional students. तो ये वीडियो relevant रहेगा आने वाले prelims के लिए और इसके बाद भी, क्योंकि हम आज बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में relevant judgments of the Supreme Court, the landmark judgments which have changed the political history of India. So these are the names of the judgments: A.K. Gopalan, Shankari Prasad, Berubari Union case, L.C. Golaknath case, then Kesavananda Bharati case, Indira Nehru Gandhi versus Raj Narayan case 1975, और जिसे हम emergency case भी कहते हैं, right? जिसे हम काफ़ी सारे नामों से ये सब केसेस को जाना जाता है. तो वन बाय वन इनको हम डील करेंगे. मेनका गांधी केस, मिनर्वा मिल्स केस और वमन राव केस, किहोतो होलोहन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. तो गाइस, बिफोर वी बिगिन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट you can refer to my website www.jatinverma.org for current affairs preparation. You can visit this website www.jatinverma.org. We are coming up with every month we are bringing out the current affairs magazine, current affairs monthly magazine, written by me and my organization. We are a team of 7 to 10 people who have appeared in UPSC Civil Services exam, producing the content for this website. So current affairs के लिए, mock tests के लिए Unacademy के साथ association में we are coming out with so many courses on Unacademy Plus under the series launched by me, which is called as Target 2020 series. Target 2020 series by me, Jatin Verma, on Unacademy. Indian economy course और सभी courses. So one by one, most cited Supreme Court judgments. 1978. जैसा कि हम सुनते रहते हैं केसेस में बार बार इन जजमेंट्स के नाम आते हैं. मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 215 टाइम्स इस जजमेंट को अब तक सुप्रीम कोर्ट ने अपने different cases which came up before the Supreme Court used this judgment, Maneka Gandhi versus Union of India, जिसे पासपोर्ट केस कहा जाता है. As I was telling you, 1975 का जो केस था उसको हम क्या कहते हैं? This case we call it as ADM जबलपुर case, right? Raj Narayan case, superseding of judges. Then we've got this first judges cases, then second judges case, then third judges case, and then we also talk about the fourth judges case, NJAC Act. One by one we are going to talk about all such judgments. State of Haryana versus Bhajanlal, 165 times this judgment has been cited. So in next 1.5 hours we are going to deal with all these judgments in a detailed manner. Kesavananda Bharati versus State of Kerala, 155 times. Protected the basic structure of Constitution of India. Kesavananda Bharati case from the parliamentary amendments. So in this judgment, as we all know, that Supreme Court said that basic structure of the Constitution should not be touched. Then State of Haryana versus Bhajanlal ruled on court interference in criminal proceedings. Right? Maneka Gandhi case में asserted the constitutional right to personal liberty. इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने गोल्डन ट्राइंगल का जिक्र किया था. आर्टिकल 14, 19 and 21 are interrelated. तो सुप्रीम कोर्ट had referred to this issue of this. Supreme Court had highlighted the importance of interlinkage, doctrine of harmonious interpretation of various articles. So Supreme Court had said that there is no seeming conflict between these articles. There is a kind of harmonious interrelationship between these articles. These articles are to be read in a manner that they are complementary to one another. Then another case, A.K. Gopalan, 1950 का ये केस है, 142 टाइम्स इसे रेफर किया जा चुका है. शरद बिरदी सरदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 142 टाइम्स. इस केस में, A.K. गोपालन केस में, अगर प्रीलिम्स में ये ऑप्शंस आती हैं कि A.K. गोपालन केस का एसेंस क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टॉक्ड अबाउट fundamental rights should be considered in isolation. Fundamental rights should be considered in isolation. A.K. गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में ये कहा गया था. और इसको आप देखेंगे कि यहां पे रिवर्स किया गया इस जजमेंट को. फंडामेंटल राइट्स आर टू बी रेड in a harmonious manner. There is an interlinkage between fundamental rights. So Supreme Court had reversed the stand taken in 1950s in the year 1978. तो पहले ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स अलग अलग हैं, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हैं. बाद में ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर इंटररिलेटेड.
देन इस केस में शरद बिरदी सारदा केस में एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल फॉर इंटरप्रेटिंग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। आगे चलते हैं, मोस्ट साइटेड जजमेंट्स इन ऑल द कोर्ट्स 2012 ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस जजमेंट को 10,000 टाइम्स से भी ज्यादा बार साइट किया गया है। मोस्ट साइटेड जजमेंट इन ऑल द कोर्ट्स, ऑल दी कोर्ट्स की बात हो रही है। हमने यहां पे सुप्रीम कोर्ट की बात करी थी 2010 सिद्धाराम मेत्रे वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास महाराष्ट्र। तो इस केस में 7750 टाइम्स लेड आउट द एलिजिबिलिटी एंड स्कोप फॉर एंटीसिपेटरी बेल। इस केस में ज्ञान सिंह में रूल्ड ऑन द सेटलमेंट एंड क्वॉशिंग ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने हमें यह ज्ञान दिया था कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को कब क्वॉश किया जा सकता है, बिल्कुल ही खत्म किया जा सकता है। सरला वर्मा 2009 वर्सेस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। This judgment has been cited around 5,900 times, detailed the compensation to be paid in motor vehicles accidents. 2013 Lalita Kumari versus Government of Uttar Pradesh, around 5,000 times, established the legality of mandatory FIR registrations. तो ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ FIR इज स्टिल नॉट अ रियलिटी, इट इज स्टिल नॉट अ रियलिटी इन इंडिया। सो इसीलिए ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि FIR शुड बी मैंडेटोरली फाइल्ड। FIR का मतलब ही यही होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट गिवन टू द पुलिस। सो इंडिया में FIR क्यों नहीं फाइल करी जाती ये भी हम समझेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1990। This judgment all over the India in various high courts has been referred to around 4,150 times. Ruled on the court interference in the criminal proceedings. Court interference in criminal proceedings. Now one by one, A.K. Gopalan case, the essence of it. This interpreted the key fundamental rights including Article 19 and 21. This is a significant decision of the Supreme Court because it represented the first case where the court meaningfully examined and interpreted key fundamental rights enlisted in the Constitution, including Article 19 and 21. The contention before the court was, मुद्दा ये था whether under the writ of habeas corpus and the provisions of Preventive Detention Act there was a violation of fundamental rights entitled in Article 13, 19, 21 and 22. The contention was whether under the writ of habeas corpus, क्या habeas corpus writ petition में and the provisions of the Preventive Detention Act, क्या उसमें fundamental rights का violation है या नहीं। तो Article 13 meaning of law, Article 19 personal liberty, Article 21 right to life, लाइकवाइज ये सारे आर्टिकल्स को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरलिंकिंग वे में इसमें क्लैरिटी दी कि हेबेस कॉर्पस किसी को प्रिवेंटिव रीजन से डिटेन करना आर्टिकल 22, तो उसमें क्या सीमिंगली कोई कॉन्फ्लिक्ट है, वेदर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 22 एंड आर्टिकल 13, 19 एंड 21. Supreme Court restricted the scope of fundamental rights by reading them in isolation of Article 21 and 22, which provided guidelines for preventive detention. Article 22 में preventive detention के लिए guidelines दी गई हैं. तो the Supreme Court reiterated that the term due process, Supreme Court iterated that due process prevented the courts from engaging in substantive due process. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा mere procedural compliance of law is enough in determining the reasonableness of the level of process provided by the legislature. Right? So Shankari Prasad, that term due process prevented the courts from engaging in substantive due process analysis in determining the reasonableness of law. That court should not go into the reasonableness of any law. Court should restrict itself to just the procedural compliance. So as we know कि जब पॉपुलर लीडर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जिनका जो करिज्मेटिक लीडर्स होते हैं, जैसे कि आज के एरा में प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, जैसे पहले जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, तो 1950s में कोर्ट प्लेड टू द ट्यून्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव. उस टाइम पे ये नहीं है कि कोर्ट वाज डेलिबरेटली डूइंग इट. इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट व्हेनेवर इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जब पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं जिनके पास इतना ज्यादा मैंडेट था, प्राइम मिनिस्टर्स हु हैड ह्यूज मैंडेट ऑफ द पब्लिक सपोर्ट, ड्यूरिंग दोज टाइम्स जुडिशरी वाज succumbing under the pressure, even though there was sometimes the pressure which was quite overt
and sometimes the pressure was not so obvious. Shankari Prasad case, amendability of fundamental rights. In this case, the validity of first constitutional amendment which added Article 31A and 31B to the constitution was challenged. The first time the question on whether the fundamental rights can be amended under Article 368 or not was put up before the Supreme Court, came for the consideration of the Supreme Court. Supreme Court rejected the contention that insofar as First Amendment Act is concerned, जहां तक First Amendment Act का सवाल है, insofar as First Amendment took away or abridged the fundamental rights conferred by Part 3, it should not be upheld in the light of provisions of Article 13 Clause 2. Therefore, Supreme Court said that law, यानी कि ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, फंडामेंटल राइट्स जहां तक 368 के थ्रू will be compromised by the constitutional amendment, then it should not be assumed, it should not be construed that fundamental rights, the amendment under Article 368 should fall under the definition of law for the purpose of Article 13 Clause 2. Article 13 Clause 2 ये कहता है, if there is any law which is brought about, which is amending the Constitution of India, अगर कोई law Constitution of India को amend करता है, तो वो law वहां तक invalid declare कर दिया जाएगा जहां तक वो fundamental rights को रौंद रहा है, जहां तक वो fundamental rights के ऊपर, if a law is trampling upon the fundamental rights, then to the extent of such clash between the fundamental rights and the constitutional amendment law, constitutional amendment act, then constitutional amendment act would be declared as nullified. But Supreme Court ने शंकरी प्रसाद में ये कहा that Article 13 must be taken to mean rules or regulations made in exercise of ordinary legislative power and not amendments to the constitution made in the exercise of constituent power. Article 13 Clause 2 did not affect the amendments under Article 368. यानी कि जो आर्टिकल 368 के अंदर जो अमेंडमेंट्स लाई जाएंगी, उन अमेंडमेंट्स को आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अधीन ना माना जाए. Am I clear? Now coming to the third one, Berubari Union case. Parliament's power to make amendments under Article 3 and 368. इस केस में the conflict arose regarding the powers of the Parliament to transfer the territory of Berubari to Pakistan. The detailed examination. So the detailed examination of Article 3 was done by the Supreme Court on a reference made by the President in 1960. President ने एक reference दिया था Article 143 के तहत कि क्या Article 3 के तहत Indian territory को किसी और country को दिया जा सकता है. Can the Indian territory be surrendered? तो Supreme Court held that Parliament of India is not competent to make a law under Article 3 for implementation of Nehru-Noon Agreement. Nehru-Noon Agreement क्या था, ये आप लोग comment section में थोड़ा सा आंसर करेंगे, because this is a part of history of India since independence. Clear? So this is there. This was followed by an amendment of the Constitution by Parliament using the power of Article 368. The result was Constitution 9th Amendment Act 1960. The Supreme Court gave a very narrow judgment that the preamble was not an integral part of the Constitution and therefore it is not enforceable in the court of law. So the import of Berubari Union case was that the preamble is not enforceable in the court of law. Preamble is not an integral part of Constitution of India. If you are asked in the prelims exam, UPSC prelims में अगर ये पूछा जाए कि बेरूबारी केस में क्या कहा गया था कि preamble is an integral part of Constitution of India or not, then you have to answer in Berubari case Supreme Court said that preamble is not an integral part of India. Then Golaknath case 1967, validity of the first and 17th amendment was put before the Supreme Court. Supreme Court was asked whether first and 17th amendment act are valid or not, and Supreme Court even described the scope of Article 13 again. Supreme Court was made to redefine the judgment, review its own judgment given in Shankari Prasad case, right? So the validity of the first and 17th amendment to the Constitution so far as they affect the fundamental rights was again challenged in Golaknath case.
द फोर्थ अमेंडमेंट वाज आल्सो चैलेंज्ड, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी चैलेंज किया गया। हियर इन दिस केस एसेंस क्या निकला, द सुप्रीम कोर्ट अडॉप्टेड अ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग अंडर विच the three constitutional amendments concerned would continue to be valid, prospective overruling, यानी कि इस जजमेंट के बाद आने वाली कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या लॉ होगी तो वो तो उसको ये उस पे ये जजमेंट अप्लाई होगी, पिछले केसेस पे ये जजमेंट अप्लाई नहीं होगी। Moreover, the Supreme Court held that Article 368 dealt only with the procedure for amendment, and amendment to the Constitution is made as a part of normal legislative process. It is therefore a law for the purpose of Article 13 Clause 2. मतलब ये था, पहले सुप्रीम कोर्ट ने गलती करी थी इस जजमेंट में। किस जजमेंट में? शंकरी प्रसाद में। शंकरी प्रसाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लॉ का मतलब है ऑर्डिनरी लॉ, सिंपल मेजॉरिटी से जो लॉ लाया गया है वो लॉ फंडामेंटल राइट्स को किल नहीं कर सकता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रूप में लाया गया लॉ, आर्टिकल 368 के रास्ते से लाया गया लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल राइट्स को ट्रैम्पल कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स को नेगेट कर सकता है। यह कहा गया शंकरी प्रसाद केस में। बाद में सुप्रीम कोर्ट को एहसास हुआ कि यह शंकरी प्रसाद केस में भोले शंकर बनने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान हो रहा है। दिस इज द वे टू रिमेंबर दिस। सुप्रीम कोर्ट को पता लगा कि गोलक जो है खाली हो जाएगी, ऐसे तो सरकार लूट के ले जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन की गोलक। तो यहां पे याद आया कि चाहे 368 के रास्ते से या किसी और रास्ते से फंडामेंटल राइट्स को आप नलिफाई नहीं कर सकते। यू कैन नॉट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 368 कैन नॉट नलिफाई और negate the fundamental rights even under article 368। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाली जो पावर है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो है अमेंडमेंट की, उसके थ्रू भी फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ले आओगे तो आप फंडामेंटल राइट्स को नलिफाई कर सकते हो। अब ये कैसे किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मीनिंग ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ एज वेल। Am I clear? तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी इंक्लूडेड है। तो टू गेट ओवर, अब इसमें यह हुआ कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर कोई भी पार्लियामेंट्री लॉ लाई जाती है जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो वो फंडामेंटल राइट्स के जिस हद तक खिलाफ है वो लॉ को उस हद तक माना ही ना जाए। क्लियर? टू गेट ओवर द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन गोलकनाथ केस, the Constitution 24th Amendment Act was passed in 1971, in which changes to Articles 13 and 368 was made. Then Kesavananda Bharati case 1973 defined the basic structure of Constitution of India. The Supreme Court reviewed the decision in Golaknath versus the state of Punjab and considered the validity of, अब ये ध्यान देना कि गोलकनाथ केस को प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग के तहत लाया गया, यानी कि पीछे के जो कानून थे ये सब लॉज जो कि पहले से अपहोल्ड किए गए, इनको लीगल माना गया। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो लैंड रिफॉर्म्स लाए गए उनको सही माना गया। अब ये कहा कि प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, आने वाले लॉज को ये डेफिनेशन अप्लाई होगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आगे आने वाले हैं वो फंडामेंटल राइट्स को नेगेट नहीं कर सकते। अब केशवानंद भारती केस, इसी में ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया गया। सुप्रीम कोर्ट रिव्यूड द डिसीजन इन गोलकनाथ केस and considered the validity of 24th, 25th, 26th and 29th constitutional amendment acts. The court held that although no part of the constitution including fundamental rights was beyond the amending power of the parliament. अब यहां पे क्या है? A kind of compromise between the judiciary and the parliament. तो ये वो केसेस हैं दोस्तों, दीज आर दोज केसेस जिसमें कि ये डिसाइड किए जा रहे थे, फंडामेंटल बहुत ही बुनियादी क्वेश्चंस डिसाइड किए जा रहे थे कि क्या इंडिया में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी चलेगी या कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी चलेगी। वेदर इंडिया वुड बी हैविंग द सिस्टम एज प्रिवेलिंग इन ब्रिटेन विच इज हैविंग अ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, और द फैक्ट दैट इंडिया हैड अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट शुड प्रिवेल? कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। Every law passed by the parliament has to conform to the constitution of India. तो ये दो ये पहलू चल रहे थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट?
तो इट इज अ लैंडमार्क जजमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकती है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो अमेंडेबल, बट basic structure of constitution cannot be abrogated, cannot be negated even by a constitutional amendment. It is a landmark judgment of the Supreme Court of India and is the basis in Indian law for the exercise of Indian judiciary, exercise of Indian judiciary of the power of judicial review. And Supreme Court struck down the amendments to the Constitution of India passed by the Indian Parliament, which conflict with the Constitution's basic structure. The judgment also defined the extent to which the Indian Parliament could restrict the right to property. तो जजमेंट ने ये स्कोप भी डिफाइन किया कि किस हद तक इंडियन पार्लियामेंट राइट टू प्रॉपर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है इन परस्यूट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, जमींदारी रिफॉर्म्स, जो गलत प्रैक्टिसेस चलती आ रही थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज लैंड होल्डिंग्स टू द कल्टिवेटर्स, ओवर रूलिंग द प्रीवियस डिसीजंस that suggested that the right to property could not be restricted. Then Indira Gandhi versus Raj Narayan case. Raj Narayan case, this was the first case to apply the basic structure doctrine. अब सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया। अब बारी आई 1975 में इस केस को एक्चुअल में अप्लाई करने की। तो दिस वाज द फर्स्ट केस. In this case, the court had to examine the validity of 39th Amendment Act, by which Article 329A was inserted into the Constitution. 329 क्या था? Article 329A dealt with special provisions as to election to Parliament in case of Prime Minister and Speaker. Along with this Article 329A, Parliament added 38 अनरिलेटेड लॉज इन दी 9th शेड्यूल. तो पहले हमने देखा, अगर आपने अगला वीडियो आएगा मेरा 20, अगर अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू डील विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस. तो अगर आपने ऑलरेडी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रीड किया है तो उसमें हमने देखा कि 9th शेड्यूल लाया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में ही 9th शेड्यूल लाया गया, और 24th अमेंडमेंट एक्ट में भी काफी सारे 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू काफी सारे लॉज को 9th शेड्यूल में इंसर्ट किया गया, और यह कहा गया कि 9th शेड्यूल में जितने भी लॉज हैं जुडिशियल रिव्यू उनका नहीं हो सकता. जुडिशियल रिव्यू इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द लॉज दैट आर पुट अंडर 9th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब इस केस में चैलेंज ये हो रहा था कि 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो 38 अनरिलेटेड लॉज को इंसर्ट किया गया है, क्या वो जुडिशियल रिव्यू उनका होगा या नहीं. तो ये सब चीजें थी. बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट रीअफर्म्ड इन दिस केस. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लगाते हुए ये कहा कि देयर आर सर्टेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर नॉन अमेंडेबल. द सुप्रीम कोर्ट्स 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यूनानिमसली अप्लाइड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन to invalidate Article 329A as it was beyond the amending power of the Parliament and as it was destroying the basic feature of the Constitution. But Supreme Court upheld the Prime Minister's election on the basis of retrospective amendment to the electoral law. इलेक्टोरल लॉ को रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने एक वे से ये कहा कि हम वन टाइम एग्जेम्पशन तो दे रहे हैं कि जो आपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन को रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड किया है इलेक्शन प्रोसेस को, वो अभी के लिए ठीक है, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होगा. जस्टिस वाई चंद्रचूड़ लिस्टेड 4 बेसिक फीचर्स which he considered unamendable. Sovereign democratic republic status, equality of status and opportunity of an individual, secularism and freedom of conscience and religion, then government of laws and not of men, that is the rule of law. No matter howsoever great you are always below law. So no matter howsoever high an individual or any lady or any man is, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, या चाहे वो मोदी जी हो, नो मैटर हाउसोएवर ग्रेट यू आर, लॉ वुड ऑलवेज बी अबव यू. ये इस केस में कहा गया, राज नारायण केस, राइट. एडीएम जबलपुर और ये सब नामों से इसको जाना जाता है. मेनका गांधी केस 1978.
This is another landmark judgment which played the most significant role towards the transformation of judicial view on Article 21 of the Constitution of India, so as to imply many more fundamental rights from Article 21. This case is always read and linked with A.K. Gopalan case. First case, 1951. So in this case, because this case revolves around the concept of personal liberty, Maneka Gandhi's passport was confiscated. We are talking about the same Maneka Gandhi who was until recently the minister in the Union Cabinet, right? Union Council of Ministers. So this case came up for the consideration in the A.K. Gopalan's case also. A.K. Gopalan case में फंडामेंटल लिबर्टी यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर ए.के. गोपालन जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर थे केरला से, उनको अरेस्ट किया गया था। मेनका गांधी का पासपोर्ट कॉन्फिस्केट कर लिया गया था, उन्हें ट्रैवल करने की इजाजत नहीं दी गई थी। द मेन इश्यूज ऑफ द केस वर वेदर द राइट टू गो अब्रॉड इज अ पार्ट ऑफ राइट टू पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, whether the Passport Act prescribes the procedure as required by Article 21। तो मुद्दा ये था कि क्या प्रोसीजर एस्टैब्लिश करके आप किसी का राइट टू मूवमेंट जो है क्रिपल कर सकते हो, आप किसी का राइट टू मूवमेंट क्लिप कर सकते हो क्योंकि आपने मेयर प्रोसीजरल कंप्लायंस के थ्रू, क्योंकि आर्टिकल 21 ये कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि अगर हम इस आर्टिकल को सिर्फ लेटर्स में देखें, स्पिरिट में नहीं देखें, कथित रूप में अगर देखें तो ये कह रहा है कि यू हैव गॉट अ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इफ द पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब्स अ प्रोसीजर टू नेगेट योर लिबर्टी। तो पार्लियामेंट ने ये कहा कि हमने पासपोर्ट एक्ट में मेनका गांधी का या फिर किसी का राइट टू लिबर्टी, राइट टू मूव अराउंड, हमें ये ऑथराइज करता है पासपोर्ट एक्ट, जो कि हमने प्रोसीजरल वे से इसको इंप्लीमेंट किया है, पास किया है। तो हमें ये प्रिस्क्राइब करता है कि प्रोसीजर के थ्रू मेनका गांधी का पासपोर्ट कॉन्फिस्केट किया जा सकता है या किसी का भी किया जा सकता है, एंड अ पर्सन कुड बी डिप्राइव्ड फ्रॉम राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 21। तीसरा बड़ा क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था, वेदर सेक्शन 10 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी ऑफ द पासपोर्ट एक्ट इज violative of article 14, 19 clause 1 sub clause A and 21 of the constitution. Fourth question was whether the impugnate order of regional passport officer, जो ऑर्डर था मेनका गांधी का पासपोर्ट कॉन्फिस्केट करने का ऑफ पासपोर्ट ऑफिसर, इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो इस केस में बेसिक मुद्दा ये था गाइस, द मेन मैटर वाज क्या प्रोसीजरल कंप्लायंस करेंगे या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करेंगे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो चीज है जैसे हम कहते हैं कि हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश करके किसी की लैंड एक्वायर कर तो सकते हैं बिना उसको मुआवजा दिए, बट ये कुदरती इंसाफ के खिलाफ होगा। दिस वुड बी अगेंस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कहता है कि वही होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करता है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ पार्लियामेंट्री डोमिनेंस की बात करता है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है कि क्या हमारा पार्लियामेंट, जैसा आर्टिकल 21 में रिटन में दिया गया कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश करके पार्लियामेंट कोई भी लॉ एनैक्ट करके किसी को फांसी पे लटका सकता है, किसी की जमीन एक्वायर कर सकता है, किसी का पासपोर्ट कॉन्फिस्केट कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दा ये था कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दे रखा है, अगर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आएंगे तो उसे किस आर्टिकल के अंडर रीड करें, क्योंकि रिटन वे में तो वो कहीं नहीं दे रखा। इसीलिए आर्टिकल 14, 19 और 21 को इंटरलिंक किया गया और ये कहा गया देयर इज अ गोल्डन ट्रायंगल बिटवीन दीज 3 आर्टिकल्स, राइट। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज इंक्लूडेड इन द राइट टू पर्सनल लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रूल्ड दैट मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ एन एनेबलिंग लॉ, सिर्फ एक प्रोसीजरली एस्टैब्लिश्ड लॉ के जरिए आप किसी की पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते। सच अ लॉ मस्ट ऑल्सो बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। तो गोल्डन ट्राइंगल रचा गया आर्टिकल 14, 19 और 21 में। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मिनर्वा मिल्स केस 1980। मिनर्वा मिल्स केस 1980 was another landmark case. It strengthened the doctrine of basic structure. इसके बाद ये पक्का हो गया कि मिनर्वा मिल्स केस के बाद केशवानंद भारती केस में बनाया गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया था, उसको कॉन्क्रीटाइज कर दिया गया।
By this judgment, the court declared two changes made in the constitution by 42nd Amendment Act 1976 to be null and void. By the 42nd Amendment Act, changes were made in Article 368 of the Constitution, which provides for power and procedure for amendment of the Constitution. Clause 4 and 5 were added to this Article 368, which were as follows. इसमें ये लिखा गया कि कोई भी अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट ने क्या लिखा, पार्लियामेंट ने ये लिखा कोई भी अमेंडमेंट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स मेड और purporting to have been done under this article, under Article 368, whether before or after the commencement of Section 55 of Constitution 42nd Amendment Act, shall be called in question in any court. यानी कि ये कहा गया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आर्टिकल 368 के थ्रू लाया जाएगा उसको कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता. यानी कि Parliament was trying to take away the power of judiciary to review the parliamentary laws. Judicial review is an integral part of Constitution of India. तो Parliament ये कैसा कर सकती है? खासकर Parliament ये कैसा कर सकती है तब जबकि केशवानंद भारती केस में दिए गए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू वाज हेल्ड टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. राइट. सो दूसरी बात जो आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने कही वो ये कही गई, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट देयर शैल बी नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि जैसा मैंने पहले बताया कि ये वो चीजें थी कि जुडिशरी की ज्यादा चलेगी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की ज्यादा चलेगी या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक परमानेंट स्ट्रक्चर है बट एक डायनामिक स्ट्रक्चर भी है. डायनामिक मींस इट हैज टू अडैप्ट इटसेल्फ टू दी चेंजिंग टाइम्स. तो इसलिए ये काइंड ऑफ एक बैलेंस डिसाइड हो रहा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को किस हद तक अमेंड कर सकते हो. क्या 5 इयर्स के लिए इलेक्ट की गई पॉलिटिकल पार्टी जो कि गवर्नमेंट में है, चाहे उसको 545 में से 545 सीट्स क्यों ना मिली हों, क्या वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर एजेस, सेंचुरीज, क्या उसको इतना ज्यादा चेंज किया जा सकता है कि उसको अंदर बाहर बदल दिया? नहीं. राइट. तो जुडिशरी ने बोला कि देयर आर सर्टेन फीचर्स विच आर वेरी बेसिक, आप उनको अगर चेंज कर देंगे तो स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, तो आप नहीं कर सकते. द कोर्ट रूल्ड बोथ दीज क्लॉजेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल. एज द 13 जज बेंच, द लार्जेस्ट बेंच टिल दैट डेट in Kesavananda Bharati case had put limitations on the power of Parliament to amend the Constitution through the doctrine of basic structure. These changes restricted the court's power of judicial review, which was adjudged to be a part of basic structure and hence was inviolable. By the 25th Amendment Act 1971, Article 31 Clause C was inserted in the Constitution, which provided for precedence of Article. अब यहाँ पे ये कहा गया 39 क्लॉज बी एंड सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स के अबव हैं. यानी कि सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल की बात करते हैं, वो इंडिविजुअल राइट्स के चलते कुछ चंद लोगों की जमीन अगर छीनी जाती है ताकि जो एक्चुअल टिलर ऑफ लैंड हैं, जो गरीब लोग हैं, अगर इनके पास में सिंधिया या फिर जो राजे रजवाड़े थे इंडिया के, अगर उनके पास में बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो उनकी ज़मीन लेके आर्टिकल 39 बी क्लॉज सी को इंप्लीमेंट करने के लिए यदि गरीबों में दी जाती है तो उसमें कुछ गलत नहीं है. इसलिए यह कहा गया कि आर्टिकल 39 क्लॉज बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आर्टिकल 39 क्लॉज सी अगेन अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इनको इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 14, 19 और 31 यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, फ्रीडम्स, राइट टू इक्वालिटी को दरकिनार किया जा सकता है. राइट. This was upheld by the court in Kesavananda Bharati case, but by the 42nd Amendment Act, Article 31 Clause C was amended to give precedence to all the directive principles. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, 39B और C ऊपर हैं और बाकी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आप नहीं इंप्लीमेंट कर सकते. आर्टिकल 14, 19 और 31 नीचे. राइट. हमने ये मान लिया, जुडिशरी ने बोला कि लेट्स हैव अ गिव एंड टेक. We can allow you to compromise these 3 fundamental rights
for the sake of implementation of only these two directive principles. ये प्रिंसिपल अब सेटल्ड है. द कोर्ट डिक्लेयर्ड दिस चेंज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल कि सभी आर्टिकल सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए नहीं, बट सिर्फ 39B एंड C को इंप्लीमेंट करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं. देन वमन राव केस, वैलिडिटी ऑफ 9th शेड्यूल, कि क्या ये वैलिड है कि 9th शेड्यूल में कोई भी लॉ डाल दोगे और बोलोगे कि ये जुडिशरी से परे है, जुडिशरी के हाथ यहां तक नहीं पहुंच सकते, इट इज बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू, वुड इट बी वैलिड? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहां पे, राइट. Supreme Court in Waman Rao case once again reiterated and applied the doctrine of basic features of constitution. In this case, implications of the basic structure doctrine of Article 31B were re-examined. The court drew a line of demarcation on 24th April, Kesavananda Bharati case, and held it should not be applied retrospectively to reopen the validity of an amendment to the constitution which took place prior to. ये कहा गया कि जो लॉज 24th अप्रैल 1973 केशवानंद भारती जजमेंट से पहले के हैं वो वैलिड हैं, बाकी के लॉज अब फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने के लिए 9th शेड्यूल में कोई भी लॉ डाला जाएगा उसका जुडिशियल रिव्यू होगा. तो द मैटर वाज सेटल्ड इन दिस वे. ऑल फ्यूचर अमेंडमेंट्स वर हेल्ड टू बी challengeable, judicially reviewable on the grounds that if the future acts and legislations or regulations which were inserted in the 9th schedule, if they damage the basic structure, judiciary would not tolerate them. तो आज के जब नेता ये कहते हैं कि रिजर्वेशन को 9th शेड्यूल में डाल दो और ये सब कर दो, जैसे कि चिराग पासवान जो अपना फ्यूचर ढूंढ रहे हैं कहीं पॉलिटिक्स में, अगर उन ये कहते हैं कोई लीडर्स कि जो चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं अगर उनको 9th शेड्यूल में डाला भी जाएगा तो भी जुडिशरी उन्हें रिव्यू करेगी. जो 24th अप्रैल 1973 से पहले की जजमेंट्स हैं, इश्यूज हैं, लॉज हैं, उनको नहीं रिव्यू किया जाएगा. क्लियर? सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन इन द अबव मेंशन केसेस. तो यानी कि फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, जिसमें कि कॉलेजियम सिस्टम लाया गया, राइट. तो ये सोल ओपिनियन ऑफ सीजेआई इज नॉट रिक्वायर्ड. तो धीरे धीरे से ये सब चीजें भी इवॉल्व हुई. तो ये था गाइज आज का ये हमारा पार्ट 1 ऑफ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. लैंडमार्क जजमेंट्स 1980 तक की जजमेंट्स आज हमने इसमें कवर करी हैं. इसके बाद की जो जजमेंट्स हैं, प्रकाश सिंह जजमेंट ऑन पुलिस रिफॉर्म्स, विशाखा गाइडलाइंस, देन एनजीटी के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और उसके बाद लिली टॉमस केस, और इसके अलावा अभी की जो जजमेंट्स हैं राइट टू प्राइवेसी, पुट्टा स्वामी केस, ये सब चीज़ों को हम पार्ट 2 में डील करेंगे इन नेक्स्ट फ्यू डेज. सो इन दिस कोर्स ऑफ 100 days बिफोर प्रीलिम्स 2020 I would be coming up with at least 30 videos on this YouTube channel. और इसका PDF आप www.jatinverma.org से डाउनलोड कर सकते हैं. और मेरे आने वाले वीडियोस के जो लाइव सेशंस जो मैं लेने जा रहा हूँ उनके अलर्ट्स पाने के लिए, टू गेट द अलर्ट्स एंड टू स्टे अपडेटेड अबाउट आवर एक्टिविटीज इन जतिन वर्माज IAS अकेडमी. एक वेबसाइट भी है www.jatinverma.org. तो इसके लिए आप 95828 पे मैसेज सेंड कर सकते हैं. आपको व्हाट्सएप करना है, SMS नहीं करना है, अलर्ट्स लिख के. सिंपली यू हैव टू राइट अलर्ट्स विदाउट हाई एंड हेलो and send it as a WhatsApp message on this number. www.jatinverma.org से आप हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन डाउनलोड कर सकते हैं. और आप इसके अलावा डेली MCQs, मॉक टेस्ट वहाँ पे हर हफ्ते करवाए जा रहे हैं अब, जो कि फ्री टेस्ट सीरीज है बिल्कुल ही, आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं. और अनअकैडमी प्लस पे आप मेरे इंडियन इकोनॉमी का जो कोर्स आने जा रहा है, कुछ इसी अंदाज में हम ग्रैन्युलर डिटेल्स में फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ये सब चीज़ों को समझेंगे. तो आप ये भी अनअकैडमी प्लस पे पा सकते हैं, राइट. आपको अनअकैडमी प्लस पे एक डिस्काउंट दिया जा रहा है. जिनको नहीं पता, जतिन वर्मा 71 कोड यदि आप यूज करते हैं तो यू वुड गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन दिस, राइट. जतिन वर्मा 71. There are many more courses by me on Unacademy Plus, so you can consider joining all those courses through one subscription of Unacademy Plus. So that was all. See you again. Thank you guys. Bye bye.